Hello student, I am Dr. Pankaj Goyal. Today we will discuss the solutions of model paper Mathematics 1 KES 103T. Is a model paper. In this model paper section A, there are the 10 questions. You have to attempt all the 10 questions. In section B, you can see that here are the 5 questions, and out of 5 questions you have to attempt 3 questions, 10 marks each, that means 30 marks. And in section C, there are the 5 questions, 1 question from each unit. And you have to attempt one part from each question, right? 10 into 5, that is 50 marks. Okay? We start the solution. We start the solution from section B. That means out of 5 questions, we have to attempt only 3 questions. So first we select the first question, that means find the matrix P which diagonalize the given matrix, this one. Diagonalize means you have to find out the eigenvalue and eigenvector. Okay. So take this question number 2. So question number 2, part A. Start from question number 2. Write the question number in between this, like this, part A. Write the matrix. The matrix, given matrix A is equal to 2, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 2, 2. Model matrix means you have to find the value of eigenvalue and eigenvector. For characteristic equations, you can write this characteristic equation as determinant of A minus lambda I, that is equal to 0. That can be written as lambda q minus c1 lambda square plus c2 lambda plus c3, that equal to 0, where this c1 is equal to sum of the diagonal element. Here is the sum of the diagonal element is a11 is 2, a22 is 3, and a33 is 2, that is equal to 7. What is c2? C2 is the sum of minor of diagonal element. First you take the minor of A11. Minor of A11 is, you can see here, that is 3, 1, 2, 2. And this plus minor of A22, second diagonal element, that is 2, 1, 1, 2. 2, 1, 1, 2. And minor of A33, that is 2, 2, 1, 3. 2, 2, 1, 3. Solve this, we get 4 plus 3 plus 4, that is equal to 11. Now C3. C3 means determinant of A. Find the value of determinant of A. Let us suppose with respect to R1. So 2 is outside, and this is 3 to the 6 minus 2, and this minus of 2, and this 1, 1, and 2 minus 1. 2 minus 1 plus, last one is 1, and the minor of this is 2 minus 3. 2 minus 3. From here we get 5. We get this one as lambda q minus 7 lambda square plus 11 lambda minus, here write the minus, alternate plus minus is here in this formula, lambda q minus c1 lambda square plus c2 lambda minus c3 equal to 0. So this minus of 5, that is equal to 0. Using calculator you can find the value of this lambda, that is equal to 5, 1, 1. Check the answer. What is the check point? Sum of eigenvalue, that is equal to sum of diagonal element. Sum of diagonal element is 5 plus 1 plus 1, 6, and that is equal 5 plus 1, 6 plus 1, 7, that is equal to this C1. That is C1 correct. Product should be determinant of A. Product is 5 into 1 into 1, that is 5.
and that is equal to determinant of A, and this would be equal to sigma of AII. That means the answer is correct. Now take lambda equal to 5. Solve for 5. Diagonal element 5, subtract diagonal element as 5. So 2 minus 5. Minus 3, 2, 1. 1, minus 2, 1. 1, 2, and this minus 3. We get this one. Okay? And right here, this one is x1, x2, x3. That is equal to 0, 0, 0. Okay? Take first two row. That means minus 3, 2, 1, 1, minus 2, 1. First one is x1 upon, second one is x2 upon, minus of this, and third one is x3 upon. For x1, 2 plus 2, 4. x2, सेकेंड कॉलम लेफ्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा -3 -1 -4. x3 के लिए लास्ट वाला कॉलम लेफ्ट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 6 - 2, that is 4. We get from here vector is 1 1 1. Vector is 1 1 1. Right? Now take lambda equal to 1. We take lambda equal to 1. The matrix is, you can see, matrix 2 2 1. That is 1 to 1 1 to 1 1 to 1. All three rows are same. Write this 1 to 1 1 to 1. This is 1 to 1. Again this is 1 to 1. You can see the rank of this matrix is 1. You can write this 1 to 1 0 0 0 0 0 0. That means number of arbitrary constant is number of variable minus rank. 3 minus 1 2. 2 arbitrary should be there. Write the equation as x1 plus 2x2 plus x3 equal to 0. 2 arbitrary. Take 2 arbitrary as x3 equal to k1 and x2 equal to k2, and from here you can write x1 equal to minus 2k2 minus of k1. Okay? Write the vector. One time take k1 as 1, k2 as 0. Write the vector x1 x2 x3. If you put k1 is 1, so this x1 is minus 1. Okay? x2 is 0, x3 is 1. Now reverse. That means k1 is 0, k2 is 1. We get from here, we get k2 is 1. K2 1 means minus 2, 1, 0. We get these three vectors. Write the vector in matrix form. You can say that matrix P, that is equal to minus 1 0 1 minus 2 1 0, and this is 1 1 1. And we know the diagonal matrix symmetry transformation D can be written as P inverse AP, and that is always equal to the lambda 1 0 0 0 lambda 2 0 0 0 lambda 3. What is lambda 1? Lambda 1 means corresponding to first one is lambda 1, this is lambda 2, and this is lambda 3. Okay? So we get this 1 0 0 0 1 0 0 0, and this is आइगन वैल्यू क्या थी हमारे पास? आइगन वैल्यू थी हमारे पास 1 1 5. तो दिल बी राइट एट 5. So this is the diagonalization of given matrix. Okay? Now come the next questions. Select this one. Take this Leibniz question, y equal to sin inverse x whole square, and find the value of y and 0. Y equal to sin inverse x. Take this one. Y equal to sin inverse x whole square. Find the value of y and 0. So 5 y1. What is y1? 2
sin inverse x into 1 upon square root of 1 minus x square. Multiply this denominator in the left hand side and square both sides. We get from here 1 minus x square y1 square, that is equal to 4 sin inverse x this whole square. You can write this as 1 minus x square y1 square, that is equal to 4y. Again differentiate with respect to x. What we get? We get 1 minus x square, and what is y1 square? Differentiation 2y1 y2 plus minus of 2x, and write the same y1 square, that is equal to 4y1. Divided by 2y1, we get 1 minus x square y2 minus xy1 and minus of 2, that is equal to 0. Okay. Find the value of here y0. What is the value of y0? From here y0. Put x equal to 0. y0 means 0. Sin inverse 0, 0. y1 0. From here you can find y1 0, that is equal to 0. And what is y2 0? y2 0, from here you can find y2 0. y2 0 means y2 at x equal to 0. Whole equation write x equal to 0. First term is y2 0, second is 0, third one is minus 2. Right hand side we get 2, that is equal to 2. Now apply the Leibniz theorem on this one. 1 minus x square y2 minus x y1. Apply a Leibniz theorem. Write this, differentiate n times using Leibniz theorem. First term is 1 minus x square. y2 का डिफरेंशिएशन हो गया y of n plus 2 plus nc1. 1 minus x square क्या हो गया आपके पास? minus 2x y of n plus 1. Okay. And we get this plus nc2 minus of 2 yn. अब इसको कर देते हैं प्लस माइनस ऑफ एक्स y1 का क्या हो जाएगा? y ऑफ n प्लस 1 प्लस nc1 माइनस एक्स का हो गया माइनस 1 yn. और माइनस 2 क्या हो जाएगा? माइनस 0, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 0. वी गेट दिस वन. We get from here 1 minus x square y of n plus 2. इसमें देखिए आप माइनस एक्स कॉमन ले लें तो यहाँ से nc1 हो जाएगा n, तो ये जाएगा 2n. माइनस ऑफ x 2n plus 1 y of n plus 1. अब देख लीजिए nc2 कितना हो जाएगा हमारे पास? nc2 हो जाएगा माइनस ऑफ n स्क्वायर प्लस n. यहाँ से प्लस माइनस n कट जाएगा तो यह जाएगा माइनस ऑफ n स्क्वायर yn इक्वल टू 0. दिस इज द Leibniz. Now put here x equal to 0. Put x equal to 0. When put x equal to 0, the first term is 1 and this is y n plus 2 at x equal to 0. Second term is 0 due to x 0. And third term is minus of n square yn 0, that is equal to 0. We can write this y of n plus 2 0, that is equal to n square this yn 0. Take this equation number 1. Put n equal to n minus 2. What we get? We get y of n 0, that is equal to n minus 2 का square y of n minus 2 0. Okay. Take this equation number 2. Again put n equal to n minus 2. Again put n equal to n minus 2. So we get y of n minus 2 0, that is equal to n minus 4 square, and this y of n minus 4 0. Put this one in equation number 2. We get by equation number 2. You can write yn 0, that is equal to
n minus 2 square, and this is n minus 4 square, and y of n minus 4 0. Similarly, you can write this is equal to, n minus 2 square, n minus 4 square, and this n minus 6 square, and that is y of n minus 6 0. Okay. Now you can see here that the difference between left hand side and right hand side is 2. So take two case. Case number 1. Case first. N H even. In case of even, you can write the last term from this equation number 1. If you put n equal to 1, we get from here y30 equal to 1 square y10. So last term will be the 1 square. Okay. For n equal to even, you can write this yn0 can be written as n minus 2 square, n minus 4 square, and write this dot dot. Write the minimum 2 term from starting, and then dot dot, and last term is we get from 1 square y10. You can write the previous term as 3 square because the difference between two term is 2. Okay. Similarly, you can write for n is odd. You can write this case 2 n is odd. In case of odd, you can write yn0. This is odd. First one is odd, and second one is even. You could be write this one as for odd one. This one is even. Last even number क्या होगा? Last even number will be 2. So that is n minus 2 square, n minus 4 square, dot dot. We get 2 square, and this y20. The previous term will be obviously 4 square. And we just find the value of y10 and y20. y10 is 0. This value we earlier find that value is 0. This is 0. So total value is 0. And this value is 2. We have this value is 2. So write this. This is equal to n minus 2 square, n minus 4 square, so, and that is 4 square, 2 square into 2. We get this one. So B part is okay. Now comes the next question. Calculate the Jacobian of this UVW XYZ with the U equal to x upon square root of 1 minus r square, and V equal to y upon r square, and Z equal upon 1 root 1 minus r square, this one. So I left this question. You can see the solutions of this in the video Jacobian. My video Jacobian, you can see the solutions of this one. So I take this next one, D part. So comes the D part, x plus y ka whole square, and these equations are given. Evaluate this integration. I take the D part. Okay. Take this D part. Question number 1D, 2D. Question number 2, and you take this D part. Question is double integration R x plus y ka square and dx dy, and here R, region R is given as x minus y 0, x minus y equal to
2. Here is x plus y, right? And the next one is 3x minus 2y 0. 3x minus 2y, that is equal to 3. You can see here these are parallel lines. If there are the parallel curve, so suppose use the change of variable. The change of variable, take this x plus y as u and 3x minus 2y as v. Now let x plus y, that is equal to u, and 3x minus 2y, that is v. Apply change of variable. For change of variable, first find the Jacobian of these two. So Jacobian of uv. Why uv? Because in one side uv, other side is xy relation. So put uv upper side and denominator write this xy. What is the Jacobian? Del u by del x 1, del u by del y 1, del v by del x 3, and del v by del y minus 2. From here we get minus of 5. We know that dx dy, that is equal to modulus. Modulus means you take positive value. Original variable upper side and the new variable is lower side uv, and this du dv. You can find, if we know the value of Jacobian of this, so you can find the Jacobian of reverse. What is reverse value? That is minus 1 upon 5. And if we write modulus of this, the modulus of minus 1 upon 5 du dv. So you can write this 1 upon 5 du into dv. This is the conversion of dx dy. Now convert this x plus y square function f of xy. This is given as x plus y square. So you can write this x plus y is u. That means you can write this is equal to u square. Okay, equal to u square. Now convert the region. The region is new region R1. Write the integration as double integration new region R1 u square dx dy की वैल्यू हमारे पास 1 by 5 du dv. What is the region? R1. So put here u and v. We get u equal to 0, u equal to 2, and v equal to 0, and this v equal to 3. If you have the constant limit, you can directly put the limit here. So we get from here 1 upon 5. Let us suppose u equal to 0 to 2, and this v equal to 0 to 3, and u square dv dv. Okay, u स्क्वायर आपका आउटसाइड आ जाएगा. तो 1 dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1, 1 का हो जाएगा आपका 3, dv का हो गया v, and 3 minus 0, that is 3. Write this 1 upon 5 into 3 u equal to 0 to 2, this u square du. u स्क्वायर क्या हो जाएगा? u क्यूब अपॉन 3 क्या हो जाएगा आपका? u क्यूब अपॉन 3, that is 3 upon 5 u cube upon 3 0 to 2. Okay, and that is equal to 8 upon 5. So section B complete. Now comes the section C. We have to attempt only one part from each section, right? In section C, first read the all three part. In examination, it may be the 2 part. I take the 3 part. So you solve all the 3 part. Okay. I am taking here only one part first, and then rest will be later on. Okay. The first part is verify Cayley-Hamilton theorem. Second part is investigate AB, system of equation. Third part is normal form. You can select any one. I select this part B, system of equations. Right. I solve this question. So take this third B, section B, third B. So write here section C. This is section C. So use the 2 pen, at least 2 pen, and write the section and question number very promptly, such that section C, question number 3, and we take this B part. Okay, system of equations, right? Write the system of equation, question 3B, question number 3B part, from the system of equations, right?
System of equations, write the matrix form A B, argument matrix. आर्गुमेंट मैट्रिक्स में क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशंस और राइट हैंड साइड सबको लिख दें. तो दिस इज 2 3 5 9 7 3 -2 8 and this is 2 3 A B. First convert into null form. First make 1. How can we convert 1? R2 change R2 minus 3 times of R1, okay, and R3 change R3 minus R1. We get from here, this is 2 3 5 9 7 minus 6, that is हो गया आपके पास 1 minus 6 minus of 17 and this is minus of 19, okay, and this 0 0 A minus 5 B minus 9. Can I write the condition for unique solution? No solution, and this one no, because it's not a null form. First we should convert this element as 0. For this, first take R1 interchange R2, and after interchanging write this R2 minus R2 change R2 minus 2 times of R1. Write this matrix as this one. Write this first second row as first row, that is 1 minus 6 minus 17 minus 19, 2 टाइम्स माइनस कर दीजिए इसमें से, तो 2 टाइम्स माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 0 2 6 12 12 plus 3 15 हो जाएगा, राइट. राइट here 15, here is 39, here is 47 and last row is same 0 0 A minus 5 and B minus 9. This is null form. This is echelon form. Now take one by one. First one आपसे पूछा नो सॉल्यूशंस. नो सॉल्यूशंस. तो नो सॉल्यूशंस का रूल क्या है बताएं. नो सॉल्यूशंस का मतलब होता है हमारे पास रैंक ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी. इसका मतलब क्या है, रैंक ऑफ ए होनी चाहिए 2, इसको आप 2 ले, उस रैंक को ले लीजिए 3. तो 2 कब होगी आपके पास, जब a माइनस 5 की वैल्यू 0 हो जाएगी. दैट मीन्स a की वैल्यू आपकी 5 हो जाएगी. वही हमारी 3 कब होगी, यू कैन राइट b माइनस 9 शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और यू कैन से b शुड नॉट बी इक्वल टू 9, राइट. नाउ टेक द इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा बताएं, रैंक ऑफ a इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल. तो दैट मीन्स यहाँ पे आप इक्वल टू 2 कर लीजिए. 2 का मतलब लास्ट रो 0, तो यू कैन से a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 9. 3 यूनिक सॉल्यूशंस. यूनिक सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा बताएं, यूनिक सॉल्यूशंस में रैंक ऑफ a इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू n, और n की वैल्यू कितना है यहाँ पे 3 है. 3 का मतलब रैंक ऑफ ए 3 कब होगी, जब ये एलिमेंट हमारा नॉन जीरो होगा. तो लिख दीजिए यहाँ पे a should not be equal to 5, and if this element is non-zero, so this element may have the any value. So write this b belongs to any real number. Okay, a should not be 5 and b belongs to any real number. तो ये हो गया हमारा दिस वन. ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने यहाँ से कंप्लीट कर लिया, राइट. अब आते क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 मीन सेकेंड यूनिट. अब देखिए सेकेंड यूनिट में हमारे पास 3 पार्ट हैं. वी हैव द दिस वन, वेरीफाई लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम फॉर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, 0 to 1/2. वेरीफाई कोसी मीन वैल्यू थ्योरम, साइन एक्स कोस एक्स के लिए आपको कोसी मीन वैल्यू थ्योरम करना है, या फिर आपको करना है डिटरमिन द एनवेलप ऑफ 2 पैरामीटर ऑफ दिस वन. यू कैन सोल्व एनी वन. In case of first 2 part, Lagrange or Cauchy mean value theorem, first write the statement and then verify. Okay, because it's a 10 marks question, write this one. I take this third part, envelope. I solve this envelope. Take this envelope means root x upon a plus root y upon b equal to 1.
दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. यहाँ पे लिख देंगे, बड़ा बड़ा लिखेंगे आप इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 एंड दिस इज सी पार्ट, राइट. एनवलप. फर्स्ट इक्वेशन इज एक्स अपॉन ए प्लस रूट वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 एंड गिवन कंडीशन हमारे पास है ए प्लस बी इक्वल टू सी. ए प्लस बी इक्वल टू सी. सबसे पहले हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू ए. बोथ इक्वेशन को विद रेस्पेक्ट टू ए डिफरेंशिएट कर दें. ये देखिए क्या हो जाएगा, रूट एक्स ए, रूट ए को आप करेंगे 1/2 आ जाएगा नीचे, यहाँ से आ जाएगा रूट ए की पावर 3/2 प्लस अगेन यार 1/2 रूट वाई अपॉन बी की पावर 3/2 डी बी अपॉन डी ए. Why we write db upon dA? Because a and b related with this relation, right? And similarly इससे फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 1 प्लस db upon dA that is equal to 0. So you can say that db upon dA equal to -1. Put this value in this equation, we get root x upon a की power 3/2 that is equal to root y upon b की power 3/2. If using these two, we can make left hand side of these two equations. So we can solve this one. So for making this, that is plus. So write this first one. You can write this one as root x upon a upon a. This you can write this y upon b upon b. अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी पहले इक्वेशन का. ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ये लेट अस सपोज इक्वेशन नंबर 2. ऐड कर दें, राइट. यू कैन ऐड, यू कैन सब्ट्रैक्ट, और यू कैन टेक एनी जस्ट मल्टीप्लाई एनी नंबर एड सब्ट्रैक्ट, राइट. कॉम्बिनेशन लेना है आपको इसका. किस तरीके से कॉम्बिनेशन लेना है, ताकि इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों आपका एक लेफ्ट हैंड साइड आ जाए. नीचे आ जाएगा ए प्लस बी बाई इक्वेशन नंबर 1 और 2, इसकी वैल्यू रख दीजिए. ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपके पास सी. नाउ टेक दिस फर्स्ट एंड थर्ड. लेट अस सपोज दिस इज फर्स्ट, दिस 2, दिस 3. व्हाट इज आवर एम? आवर एम इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी. ओके, वैल्यू ऑफ ए बी फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट एंड थर्ड ले लेते हैं. फर्स्ट एंड थर्ड. फर्स्ट थर्ड से क्या आ जाएगा बताएं, रूट एक्स अपॉन ए की पावर 3/2 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन सी. फ्रॉम हियर यू कैन राइट दिस ए की पावर 3/2 that is equal to c root x. So you can say a equal to, दोनों तरफ क्या कर दें, 2/3 पावर कर दीजिए, c की पावर 2/3 एंड x की पावर कितना हो जाएगा 1/3. सिमिलरली टेकिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, टेक दिस सेकंड एंड थर्ड. सेकंड एंड थर्ड ले लीजिए. यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, रूट y अपॉन b की पावर 3/2 इक्वल टू 1 अपॉन c. From here we get b equal to c की पावर 2/3 and y की पावर 1/3, right? Put these two in equation number 1. What is equation number 1? Equation number 1 is a plus b equal to c. Write this. c की पावर 2/3 दोनों में से कॉमन आ जाएगा मेरे पास, right? पहले तो आ जाएगा x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 equal to c. From here we get x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 इक्वल टू c की पावर 1/3. तो दिस इज द रिक्वायर्ड एनवलप. तो वी कंप्लीट दिस क्वेश्चन नंबर 4. नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 5. नाउ कम्स दिस क्वेश्चन नंबर 5. सी दिस क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 मीन्स यूनिट, आपके पास है यूनिट नंबर दिस 3. 3 में कौन सा क्वेश्चन सोल्व करेंगे, यू कैन सोल्व एनी क्वेश्चंस. ओके, तो आई सोल्व दिस ए पार्ट, मैक्सिमम मिनिमा, और बी पार्ट. ओके, आई टेक बी पार्ट एंड पार्ट ए. दिस वन पार्ट ए यू कैन सी इन माय वीडियो, Lagrange functions, Jacobian and Lagrange. There you can see this one, right? But we take the part B. Evaluate this one. तो हम इसको पार्ट बी कर लेते हैं यहाँ से. Evaluate of this one, तो 5B, take 5B part, 5 of B.
क्वेश्चन नंबर 5B। 5B में देखिए क्या है हमारे पास, फाइंड द अप्रोक्स वैल्यू ऑफ, फाइंड अप्रोक्स वैल्यू ऑफ लोगरिथम ऑफ, क्या था देखिए यहाँ पे 1.03 और 0.98, 1.03 होल पावर 1/3 and 0.98 whole power 1/4 minus 1 this one। फर्स्ट सपोज द फंक्शन, इसके अकॉर्डिंग का फंक्शन सपोज कर लें, तो इसको वेरिएबल एक्स मान लेता हूँ, इसको वाई मान लेता हूँ, राइट। आई कैन टेक एफ इक्वल टू लोगरिथम ऑफ एक्स की पावर 1/3 प्लस वाई की पावर 1/4 minus 1, we take this one, okay। So now you can see that x equal to 1.03, is because x equal to 1.03, they put a equal to 1 and h equal to 0.03. We will take h and k as less as possible. And what is b? 0.98. 0.98 nearby integer is 1. So take this 1 and k can be written as minus of 0.02. You can like this. Okay. Now apply the Taylor series. Taylor series up to first term. So f can be written as f of ab plus 1 upon factorial 1 h fx plus kfy, only up to first term, kfy। what is fx? Let's find out fx। fx में with respect to x differentiation, तो with respect to x में क्या होगा, log का हो जाएगा 1 upon this x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/4 माइनस 1, और x की पावर 1/3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा देखिए, तो x की पावर 1/3 का हो जाएगा मेरे पास देखिए 1/3 x की पावर नीचे आ जाएगा आपका 2/3, ओके। एंड व्हेन पुट देयर पॉइंट एज 1 1, तो fx एज 0.11, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 1/3, ये 1/3 आ जाएगा, राइट। दी 1 + 1 - 1 ये आ जाएगा, दिस वन। नाउ फाइंड द fy। fy मीन्स डेरिवेटिव ऑफ f विद रेस्पेक्ट टू y। द डेरिवेटिव ऑफ f विद रेस्पेक्ट टू y क्या होगा बताएं, x की पावर 1/3 y की पावर 1/4 माइनस 1, और इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1/4 y की पावर 3/4, इसमें भी 1 1 रख दीजिए, 1 1 क्या आ जाएगा मेरे पास 1/4 आ जाएगा, ओके। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए, f की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, f of 1 1 क्या हो जाएगा, लोगरिथम ऑफ 1 + 1 - 1 log 1 दैट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 0, ओके, प्लस h 0.03 fx 1/3 k माइनस 0.02 fy 1/4, ये सोल्व करके आ जाएगा मेरे पास 0.005। तो दिस इज द आंसर। इस तरीके से आपको सोल्व करके बताना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या हो गया, यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम एंड मास कंटेन इन द सॉलिड रीजन इन द फर्स्ट ऑक्टेंट, दिस वन। एंड दूसरा कह रहे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आपको चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ना आए तो वॉल्यूम और मास का फॉर्मूला आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टेबल इंटीग्रेशन dx dy dz, एंड पुट द लिमिट, अदरवाइज ऐसे छोड़ सकते हैं। एंड मास में क्या लिखेंगे, टेबल इंटीग्रेशन रो dx dy dz। I take the second part using the change of order of integration, solve this one। I solve this change of order of integrations, change of order of integrations को solve करता हूँ, राइट। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 6b, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देख लीजिए आपको चेंज ऑफ ऑर्डर करना है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। और क्वेश्चन आपको दिया है देखिए 0 to 1, यहाँ पे दिया x² से 2 - x, xy
डी वाई डी एक्स, इसको सोल्व करना है, राइट। ये कैसे सोल्व करें? यहाँ पे सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस पहले बना लीजिए, ठीक है ना। एक्स एक्सिस फर्स्ट सी द फर्स्ट लिमिट इज 4x इक्वल टू 0। तो वर्टिकल जो हमारी ओरिजिनल है, ओरिजिनल स्ट्रिप कैसी है? वर्टिकल है। इसको आप और डिटेल में देख सकते हैं मेरी वीडियो में, चेंज ऑफ ऑर्डर की वीडियो, आप जाके इसको डिटेल में देख सकते हैं। वर्टिकल है। अब दूसरे नंबर पर हम क्या करना होता है, ये सेकंड इंडिकेशन है, इसकी लिमिट को स्केच करना है। दैट मीन्स y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को स्केच करना है एंड y इक्वल टू 2 माइनस एक्स। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला हो गया अपर साइड, तो मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया दिस, ये पैराबोला। y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, तो x और y एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट के साथ एक लाइन बन जाएगी आपकी, और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा 2, तो 2 0 हो जाएगा स्पाइन के कोऑर्डिनेट, उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 2। ओके, अब आपको क्या करना है, ये स्ट्रिप पुट करना है, ओरिजिनल स्ट्रिप को ऐसे पुट करें कि ये दोनों कर्व को सेटिस्फाइड कर दे। तो आप इसको ऐसे वर्टिकल पुट कर लें, दिस वन, ये आपका हो गया वर्टिकल। ये मान लीजिए स्ट्रिप है आपके पास, दिस वन। कहाँ से चलेगी? ये 0 से लेके, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पहले चेक कर लीजिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके 1 1। तो कहाँ तक कह रहा है पहला इंडिकेशन 0 to 1, इसका मतलब ये जो हमारे पास रीजन है दिस वन, ये रीजन, ये हमारा यहाँ पर रिक्वायर्ड रीजन है। ओके, अब आपको चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंडिकेशन करना है। तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंडिकेशन के लिए क्या करें, इस वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर दीजिए। वर्टिकल को क्या करें, हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर दें, एंड देन इसकी लिमिट फाइंड आउट कर दीजिए। तो मैंने इसको यहाँ तरफ कर दिया। आप 2 पेन का यूज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने अभी फिलहाल अब कर दिया आपको समझाने के लिए। ये हुआ, जब आप इसको, ये पॉइंट है वो हमारे पास था, देखिए ओ ए बी, अगर आप ओ से लेके ए तक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मूव कराएंगे तो बी पॉइंट पे क्या होगा, रीजन को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 2 पार्ट में। जिस भी पॉइंट पे ये आपका कर्व कोई भी चेंज हो जाए उसी पे डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे हमारे पास 2 पार्ट हो जाएंगे, दिस वन, इसको बोलेंगे सेकंड, लेट अस सपोज, इसको बोल देते हैं फर्स्ट। तो इसकी जो लिमिट लिखेंगे वो क्या करेंगे, डबल प्लस करके लिख दीजिए, दिस एंड प्लस दिस वन। जितने रीजन हो उतने टाइम तक इसको ऐड कर देंगे। लिमिट किसकी आएगी, वाई की आएगी। y इक्वल टू, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 1, y इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक। तो वैसी बात है, दूसरे में कहाँ से आएगा, 1 से लेके, इसकी y लिमिट क्या है 2, क्या लिख दीजिए 2। वहाँ दिस वन लेफ्ट पे क्या है आपके पास, x एक्सिस है, यानी कि x इक्वल टू 0 है। फर्स्ट रीजन में कौन सा कर्व है, लेफ्ट राइट पे ये वाला कर्व है, यानी कि पैराबोला। तो पैराबोला की इक्वेशन लिख दीजिए इन टर्म्स ऑफ x। तो y इक्वल टू क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट वाई। x इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस रूट वाई आएगा। तो ये कर्व का राइट पार्ट है, इसलिए प्लस साइन ले लीजिए, यहाँ से आ जाएगा मेरा रूट वाई। ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 0, और इधर क्या है, स्ट्रेट लाइन है ये वाली, ये स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या थी, दिस वन, यहाँ से आ जाएगा आपका 2 माइनस वाई। यहाँ पे लिख दें दिस एक्स वाई। तो पहले आपको किसके रेस्पेक्ट में है, एक्स वाई, तो वाई को बाहर लिख देता हूँ, एक्स डी एक्स डी वाई। इसमें वाई को बाहर लिख दीजिए, एक्स डी एक्स डी वाई। वह इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लें, क्या हो जाएगा देखिए, कैन राइट दिस y इक्वल टू 0 to 1, y x का क्या हो गया, x हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। तो लिमिट लिख दीजिए 0 to रूट वाई, यानी हो जाएगा dy प्लस इंटीग्रेशन y इक्वल टू 1 to 2, ये भी y, तो इंटीग्रेशन तो सेम ही रहेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2 माइनस वाई, तो क्या आपने लिमिट पुट कर दी है, राइट। जब लिमिट पुट करेंगे तो 1/2 तो आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा मेरा y इक्वल टू 0 to 1, रूट वाई का स्क्वायर तो y हो जाएगा, y इंटू वाई मिल जाएगा मुझे, y इंटू वाई डी वाई। सिमिलरली यहाँ पे भी 1/2 हो जाएगा बाहर, y इक्वल टू 1 to 2, ओके, तो y इंटू एक्स स्क्वायर बन जाएगा 2 माइनस वाई का स्क्वायर डी वाई। ओके,
इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, इसके सोल्व करके इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3/8, राइट। तो वी गेट दिस वन। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट मतलब आएगा यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में आप देख सकते हैं दो तुम्हारे पास क्वेश्चन है। फर्स्ट है वेरीफाई ग्रीन थ्योरम एंड सेकंड वन है फाइंड द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ डेल एफ द पॉइंट ऑफ दिस इन द डायरेक्शंस ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस गिवन सरफेस दिस वन। वी टेक दिस क्वेश्चंस। आपका कौन सा डायरेक्शन डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन को ले लेते हैं यहाँ पे। डायरेक्शन डेरिवेटिव लास्ट क्वेश्चन इसमें है सेवेंथ का हमने ले लिया इसमें बी पार्ट। टेक दिस सेवेंथ बी। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट फाइंड द डायरेक्शन डेरिवेटिव। डायरेक्शन डेरिवेटिव के लिए सबसे पहले कह रहा था आपको पास डेल डॉट, पहले डेल एफ फाइंड आउट करेंगे और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, फाई की वैल्यू हो जाएगी, राइट। फिर हमें फाइंड वेक्टर फाइंड आउट करना ए। जो वेक्टर ए होगा वो क्या होगा, डेल ऑफ गिवन कर्व। जो आपको गिवन कर्व है यानी कि आपका होगा एक्स, यहाँ पर ले लीजिए एक्स वाई स्क्वायर जेड माइनस 3x प्लस जेड स्क्वायर, ये कर्व आपका हो जाएगा वेक्टर ए। इससे फाइंड आउट हो जाएगा एट पॉइंट क्या था मेरे पास, पी पॉइंट था 1 -2 1। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डेल एफ से। व्हाट इज डेल एफ? डेल एफ मीन्स डेल एफ आपको क्या दिया है, एफ मुझे दिया 2x³ वाई स्क्वायर जेड की पावर 4 दिया। इसका डेल फाइंड आउट कर दें सबसे पहले। डेल का मतलब क्या हुआ, डेल का मतलब है इसको एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे आई कंपोनेंट, वाई के रेस्पेक्ट में जी कंपोनेंट, जेड के रेस्पेक्ट में के कंपोनेंट। तो एक्स के रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा 6x² वाई स्क्वायर जेड की पावर 4i प्लस वाई के रेस्पेक्ट में कर दीजिए 4x³ वाई जेड की पावर 4 जे। अब जेड के रेस्पेक्ट में कर दीजिए क्या हो जाएगा 8x³ वाई स्क्वायर जेड क्यू, ये मिल गया। ओके, उसके साथ में आ जाएगा के। अब फाइंड आउट करें डेल डॉट डेल एफ। डेल डॉट डेल एफ का मतलब हुआ इसको एक्स के रेस्पेक्ट में, इसको वाई के रेस्पेक्ट में, इसको जेड के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करें। इसके एक्स के रेस्पेक्ट में करें क्या आएगा, क्या आ जाएगा मेरे पास 12x वाई स्क्वायर जेड की पावर 4। इसको वाई के रेस्पेक्ट में करें तो क्या आएगा 4x³ जेड की पावर 4। उसको जेड के रेस्पेक्ट में क्या आएगा 8 24 24x³ वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये मुझे अब ये जो वैल्यू आई हमारे पास, ये वैल्यू हमारी 5 आ गई, दिस इज 5। अब मुझे चाहिए डेल 5। डेल 5 वाला पूरे को एक्स के रेस्पेक्ट में आई कंपोनेंट, वाई के रेस्पेक्ट में जी कंपोनेंट और जेड के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा के कंपोनेंट। तो पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करें, एक्स के रेस्पेक्ट में हो जाएगा देखिए 12 वाई स्क्वायर जेड की पावर 4 प्लस 12x² जेड की पावर 4 प्लस 24 × 3 कितना हो गया आपका 72। वी गेट 72x² वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आई कंपोनेंट प्लस जे में वाई के रेस्पेक्ट में कर दें क्या जाएगा आपका 24x वाई जेड की पावर 4 प्लस सेकेंड टर्म आपकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, थर्ड हो जाएगी 48x³ वाई जेड स्क्वायर जी। सेम तरीके से जेड के रेस्पेक्ट में कर दें क्या हो जाएगा बताएं। तो यहाँ से आ जाएगा देखिए फर्स्ट वन तो जेड के रेस्पेक्ट 48, 4 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 48x वाई स्क्वायर जेड क्यूब प्लस 16x³ जेड क्यूब प्लस 48x³ 48x³ वाई स्क्वायर जेड की, ये आ जाएगा। इसमें आप पॉइंट रख दीजिए डेल 5 एट द पॉइंट 1 -2 1। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी रखने के बाद सोल्व कर लीजिएगा इसको। वी गेट 348i -1 44j प्लस 400k आ जाएगा, राइट। अब यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करें। व्हाट इज a वेक्टर a में जिस डायरेक्शन में आपको चाहिए तो डेल ऑफ कितना
एक्स वाई स्क्वायर जेड माइनस जेड क्यू माइनस 3x, इसको फाइंड आउट करें। यहाँ से फाइंड आउट करके लिख दीजिए यहाँ पे दिस वन सबसे पहले विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स आप करोगे इसको वाई स्क्वायर जेड माइनस 3 आ जाएगा, राइट। आई ये हो जाएगा प्लस 2xyz जी हो जाएगा प्लस कितना जेड के रेस्पेक्ट में हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2z के। इसको भी पॉइंट रख दीजिए 1 माइनस 2 1, पॉइंट रख के मेरे पास आ जाएगा देखिए आई माइनस 4j प्लस 2k। ए कैप का मतलब क्या होगा, वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, वेक्टर ए कैप, ए कैप हो जाएगा मेरे पास वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, दैट मीन्स आई माइनस 4j प्लस 2k अपॉन कितना, दिस इज √21। तो डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या हो जाएगा देखिए हमारे पास ये हो जाएगा डेल फाई डॉट ए कैप। तो डेल फाई भी हमने फाइंड आउट किया था 348i माइनस 144j प्लस 400k, ओके 400k, और इसका डॉट प्रोडक्ट कर दें यहाँ पे दिस वन आई माइनस 4j प्लस 2k अपॉन √21। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी सोल्व करके वो आ जाएगी मेरे पास 1724 अपॉन √21। तो इस तरीके से हमने इसमें सेक्शन बी सेक्शन सी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब आ जाता हूँ मैं सेक्शन ए पे, कम सेक्शन ए। तो सेक्शन ए सबसे पहले सेक्शन ए के फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। 10 पार्ट है, सबके सब करना है। आइगन वैल्यू ए गिवन है 2a स्क्वायर माइनस 3a प्लस आई आपको चाहिए। तो यहाँ पे आ जाते हैं सेक्शन ए, सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट। ए की आइगन वैल्यू आपको गिवन है 1 2 3। तो पता है ए स्क्वायर की क्या होती है, ए स्क्वायर की इसका स्क्वायर होती है यानी कि 1 4 9 होगी। व्हाट अबाउट 3a स्क्वायर, 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा बताएं। 3 स्क्वायर में क्या करें, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सॉरी 2a स्क्वायर, इसमें क्वेश्चन में क्या चाहिए था 2a स्क्वायर चाहिए। एक मिनट चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन में चाहिए था मैं 2a स्क्वायर माइनस 3 है, राइट। 2a स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 8 और ये हो जाएगा आपके पास 9 2 18 होगा। अब चाहिए माइनस 3a, माइनस 3 का मतलब a को माइनस 3 से मल्टीप्लाई, तो माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9। अब आपको क्या चाहिए, आई चाहिए, आई प्लस आई, प्लस आई का मतलब 1 1 1, आइडेंटिटी की होती है 1 1 1। ये इसको यहाँ से यहाँ तक ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0, ये आ गया 3 और ये आ गया मेरे पास 9 10। इसका आइगन वैल्यू हो गई हमारी 0 प्लस 3 0 3 10, ये ज़्यादा आइगन वैल्यू। नेक्स्ट पार्ट पे आता है, इफ ए इज ए स्क्यू हर्मिशियन प्रूव दैट आई ए इज ए हर्मिशियन। बी पार्ट ले लेते हैं, ए इज ए हर्मिशियन। हर्मिशियन की डेफिनेशन क्या होती है, हर्मिशियन की आपकी डेफिनेशन होती है ए इक्वल टू ए थीटा होती है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है ना, इज द इक्वेशन नंबर 1। मैं आई ए प्रूफ करना है तो बी मान लेता हूँ आई ए को, राइट। लेट बी इक्वल टू आई ए, बोथ साइड में थीटा ले लीजिए, बी थीटा आई ए थीटा। आई ए थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास, बी थीटा इज इक्वल टू ए थीटा आई थीटा। आई थीटा की वैल्यू हो गई आई और ए थीटा की क्या हो गई ए। आई क्या है, कांस्टेंट है, बाहर इसको पहले लिख के बाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से आई थीटा क्या होगा ए और इसकी वैल्यू हो गई माइनस ऑफ सॉरी ए थीटा क्या होगा, व्हाट इज ए थीटा, आई थीटा।
आई थीटा मतलब आई का कंजुगेट, आई का कंजुगेट हो जाएगा माइनस आई और ए थीटा का हो जाएगा ए, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, लिख देते हैं आई ए दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी. यू कैन से फ्रॉम हेयर b theta equal to minus b, so we can say b, that means ia is skew Hermitian. ठीक है, skew Hermitian, राइट. अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, पार्ट नंबर सी. पार्ट सी में देखिए कह रहा है आपको ये वाई एन इक्वल टू फैक्टोरियल एन माइनस वन अपॉन एक्स इफ वाई इक्वल टू एक्स की पावर एन माइनस वन लोग एक्स. वाई की वैल्यू आपको दी है तो आपको क्या करना है, वाई एन की वैल्यू निकालना है. इस तरह के ज्यादातर क्वेश्चन में तो आपको क्या करना है कि अगर ये इस तरह से दिया हो तो आप डायरेक्ट इसमें लेबनीज लगा दीजिए. लेकिन इसमें प्रूफ करना है तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हमें करना पड़ेगा. तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पी पार्ट, सी पार्ट आपको कह रहा है वाई इक्वल टू एक्स की पावर एन माइनस वन लोग एक्स, वो प्रूफ करना है मुझे वाई एन इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन अपॉन एक्स करना है. सबसे पहले मैं वाई वन निकाल लेता हूँ. वाई वन क्या हो जाएगा, वाई वन हो जाएगा देखिए एक्स की पावर एन माइनस वन लोग एक्स हो जाएगा वन प्लस एक्स प्लस एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस टू लोग एक्स. एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, एक्स वाई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन, ये वापिस वाई बन जाएगा. ओके, अब यहाँ लेबनीज लगा दें. डिफरेंशिएट कितने टाइम चाहिए, एन टाइम, तो मैं कितने बार कर दूं, एक बार कर चुका हूँ, एन माइनस वन कर दें, एन वन माइनस टाइम यूजिंग लेबनीज थ्योरम. क्या हो जाएगा बताएं, एक्स वाई वन का हो जाएगा वाई एन प्लस एन माइनस वन. देखिए वहाँ था एन, यहाँ पे एन माइनस वन, जितने बार करेंगे वो ऊपर आएगा, एन माइनस वन, इसलिए सी वन. एक्स का क्या हो गया वन, तो एक कम कर दीजिए, एन माइनस वन दैट इज इक्वल टू डी एन माइनस वन, एन माइनस वन टाइम्स ऑफ एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन वाई ऑफ एन माइनस वन. अब देखिए वाई ऑफ एन माइनस वन से ये वाली टर्म से ये वाली टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी. यहाँ से बच जाएगा एक्स वाई एन इक्वल टू, जितना डिग्री है उतने बार डिफरेंशिएशन है, क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन. यू कैन से वाई एन इक्वल टू फैक्टोरियल एन माइनस वन अपॉन एक्स आ गया. ये मेरे पास इसका पार्ट ये सोल्व हो गया. नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास डी पार्ट. तो डी पार्ट में कह रहे हैं आपके पास फाइंड द एनवलप. इक्वेशन ऑफ एनवलप y इक्वल टू mx प्लस रूट वन प्लस एम स्क्वायर. एनवलप निकालना है डी पार्ट. y इक्वल टू दिया है मुझे आपके पास mx प्लस वन प्लस एम स्क्वायर. m इज ए पैरामीटर. इसमें क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक बना सकते हैं. आपको देखने में पता लग रहा है कि इसको क्वाड्रेटिक हम बना सकते हैं. मैं इसको लिख लेता हूँ y माइनस एम एक्स होल स्क्वायर प्लस दिस इक्वल टू, राइट हैंड साइड से रूट हटा दें, वन प्लस एम स्क्वायर. क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई एम वन प्लस एम स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस वन एम स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई एम प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन दैट इज इक्वल टू जीरो. उसको आप कंपेयर कर दीजिए किससे, ए लैम्डा स्क्वायर प्लस बी लैम्डा प्लस सी इक्वल टू जीरो. तो इक्वेशंस ऑफ एनवलप ये क्या होते हैं मेरी, बी स्क्वायर इक्वल टू फोर ए सी. यहाँ पे बी क्या है, बी है टू एक्स वाई माइनस टू एक्स वाई, माइनस ऑफ टू एक्स वाई होल स्क्वायर फोर, ये लिख दीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस वन. तो सोल्व कर लीजिए, यहाँ से इक्वेशन सर्किल आ जाएगी मेरी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन आ जाएगा. ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. नेक्स्ट पार्ट में दिया है आपको एफ रूट एक्स प्लस रूट वाई कोट एफ माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन यूजिंग यूलर थ्योरम.
देखिए यहाँ पे कोट एफ दिया है, तो पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं इसको, राइट। ई पार्ट, तो ये हमारे पास देख दिया रूट एक्स प्लस रूट वाई कोट एफ। ज्यादातर एफ फंक्शन होता है, यहाँ पे एफ वेरिएबल है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास एक्स प्लस वाई, यू कैन से कोट ऑफ एफ दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई मान लीजिए। इसको थोड़ी देर के लिए जेड ले लीजिए, राइट। तो क्या बन जाएगा फार्मूला आपका, एक्स यू एक्स, यू की जगह पे एफ है तो एफ एक्स लिख लीजिए, प्लस वाई एफ वाई दैट इज इक्वल टू एन एफ यू। एफ पहले से वेरिएबल है तो उसको मैं थोड़ा सा नया वेरिएबल मान लेता हूँ, क्या माने, जी मान लेता हूँ, है ना, जी ऑफ एफ अपॉन जी डैश एफ, राइट। अब एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू दिखाई दे रहा है 1 माइनस 1/2, 1/2 दिखाई दे रहा है इसमें, ये हो गया 1/2 जी एफ कोट ऑफ एफ है, जी डैश एफ कोट का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एफ होता है, ओके। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 1/2 माइनस के एंड दिस साइन एफ कोस एफ, मैं इसको लिख सकता हूँ -1/4 साइन ऑफ 2f। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, इस -4 को लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 को, क्या हो जाएगा आपका 4x एफ एक्स प्लस 4y एफ वाई, ऐसे लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस साइन ऑफ 2f दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास जो आपको प्रूफ करना है फाइंड आउट हो गया, दिस वे इसकी वैल्यू हो गई साइन ऑफ माइनस साइन 2f, इसकी वैल्यू आ जाएगी, अगर रखनी है आपको, राइट। अगर कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन आर, आर आई इक्वल टू ई दिया है, आर आई इक्वल टू ई, लोगरिथम ले लेते हैं, आर आई इक्वल टू ई में क्या करें, लोगरिथम ले लीजिए आप, एफ पार्ट आर आई इक्वल टू ई, तो लोग क्या हो जाएगा, लोगरिथम ऑफ आर प्लस लोगरिथम ऑफ आई इक्वल टू लोगरिथम ऑफ ई, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, क्या हो जाएगा आर अपॉन डेल्टा आर, एरर इन आर अपॉन आर प्लस एरर इन आई अपॉन आई इक्वल टू एरर इन ई अपॉन ई। और आपको दिया है परसेंटेज एरर दिया है, देखिए इसमें परसेंटेज एरर किसका दिया है, ई में 20 और आई में 10। आपको दिया परसेंटेज एरर इन ई दैट इज 20 और परसेंटेज एरर इन आई दैट इज 10। क्या करें, डेल्टा आई अपॉन आई को राइट हैंड साइड में कन्वर्ट को शिफ्ट करके और 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका परसेंटेज एरर इन आर दैट इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन ई माइनस परसेंटेज एरर इन आई। परसेंटेज एरर इन ई 2 दिया है, 20 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 10% एरर आपके आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट वाले पार्ट में आता है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द डबल इंटीग्रेशन। देखिए इसमें फंक्शन एफ एक्स वाई दिया है, इसका मतलब है कि इसमें इंटीग्रेशन आपको नहीं करना है, इसमें जस्ट आपको चेंज ऑफ ऑर्डर करना है, राइट। -1 से लेके 2 और -x से लेके 2 - x², इसका चेंज ऑफ ऑर्डर कर देते हैं। एफ जी पार्ट हो गया है ना, जी पार्ट में हमारे पास दिया दिस इंटीग्रेशन -1 से 2 और ये दे दिया इंटीग्रेशन आपको -x से 2 - x², एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। इसकी फिगर बनानी पड़ेगी हमें, इसकी फिगर बना लेते हैं, दिस वन, ये आगे दिस वन, ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू -x, तो y इक्वल टू -x, ऐसे लाइन आप बना दीजिए, y इक्वल टू -x। ये लाइन है मेरे पास y इक्वल टू 2 - x², 2 - x²। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी नहीं है, तो इसको मैं लिख देता हूँ x² इक्वल टू 2 - y। इसको लिख सकते हैं x² इक्वल टू -y - 2। तो आप देख सकते हैं पैराबोला की इक्वेशन है, ओरिजिन शिफ्ट करना है किस पे, 2 पे, y इक्वल टू 2 पे। तो अगर मेरे पास होता x² इक्वल टू y होता तो आपका ऐसे करके ऐसे बनता, तो इसको शिफ्ट करके कहाँ पे ले जाइए, 0 2 पे ले जाइए, ये है 0 2
तो यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ये करके ऐसे आपका बन जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा। कट पॉइंट इसका देख लेते हैं। कट पॉइंट के लिए क्या करें, माइनस एक्स इसका हो जाएगा इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ से आ जाएगी -1 2, तो -1 ये पॉइंट हो जाएगा, वो तो ये 1 हो जाएगा, वो ये 2 हो जाएगा -2। आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको ऐसे वर्टिकल स्ट्रिप ले लें और -1 से लेके 2 तक इसको वेरी करा दें, तो ये पूरा पूरा रीजन हमारे पास, ये जो रीजन है दिस वन, ये रीजन हमारा आ जाएगा लाइक। तो क्या करें इसमें चेंज ऑफ फोटो कर देते हैं। ब्लू स्ट्रिप ले लेता हूं मैं यहाँ पे इसके लिए, चेंज ऑफ फोल्डर के लिए। ये हमने इसको साफ कर दिया दिस वन। तो ये यहाँ पे हमारे पास था दिस, और ये था दिस वन, ऐसे था। तो ये मैंने ले लिया दिस वन, कहाँ से कहाँ तक, पाई -2 से लेके 1 तक लिख दीजिए यहाँ पे, पाई इक्वल टू -2 to 1। ओके, एक्स लेफ्ट हैंड पार्ट पे क्या है, ये लाइन है, x इक्वल टू -y। राइट हैंड पार्ट पे क्या है, ये आपका कर्व है। तो राइट हैंड पार्ट पे कर्व के लिए हम इसकी x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, तो क्या आ जाएगी यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ y -2 आ जाएगी। तो ये हमारे पास कर्व ये हो जाएगा चेंज ऑफ ऑर्डर, f ऑफ xy dx dy हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले था मेरा dy dx dy गलत लिखा है, यहाँ पे dy dx होगा, राइट, dy dx। ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू x, x स्क्वायर इक्वल टू y। एरिया बाउंडेड बाय दिस वन, h पार्ट, h, y स्क्वायर इक्वल टू x, x स्क्वायर इक्वल टू y। इसकी फिगर बना दीजिए, ये आ गया, ये पैराबोला, ये पैराबोला, ठीक है। तो ये आपका पैराबोला आ गया दिस वन, ऐसे O A B C ऐसे। ये ले लीजिए इसका कट पॉइंट, यहाँ इसका कट पॉइंट आ जाएगा 1 1। एरिया को कैसे डिनोट करोगे, एरिया को डिनोट करके डबल डी इंटीग्रेशन r dx dy। इसकी लिमिट रख दीजिए, x इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, y इक्वल टू कहाँ से, नीचे वाला कर्व, ये वाला कर्व क्या है, ये वाला कर्व मेरा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, राइट। तो y इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर से रूट एक्स डी वाई डी एक्स। इसको सोल्व कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू मेरी 1/3 आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इसको फाइंड द एफ आर सच दैट डेल्टा एफ इक्वल टू आर अपॉन आर की पावर 5, f1 इक्वल टू 0 आपको गिवन है। इसके लिए लगा देते हैं इसमें दिस वन आई पार्ट। तो आई पार्ट में आपको कह रहा है फाइंड एफ आर इफ डेल्टा ऑफ एफ आर दैट इज इक्वल टू आर अपॉन आर की पावर 5 है, राइट, एंड f1 आपको 0 दिया। तो डेल्टा एफ आर इक्वल टू दिस दिया है, इसका मतलब क्या है कि ये आपकी जो वैल्यू है हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस, देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर f such that delta of fr dot dr, ठीक है। ये हमने इसको लिख लिया, f कैपिटल F इज इक्वल टू डेल्टा एफ आर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको दिस वन d ऑफ एफ आर दैट इज इक्वल टू f डॉट डी आर। f की वैल्यू क्या है यहाँ पे, r अपॉन r5 है, लिख दीजिए वेक्टर r अपॉन r5 dr। वेक्टर r क्या होता है, वेक्टर r होता है xi प्लस वेक्टर r, पहले वेक्टर r लिख देते हैं, दिस इज xi प्लस yj प्लस zk, और dr क्या होगा, dxi प्लस dyj प्लस
डी जेड के होगा। आर डॉट डी आर डॉट डी आर क्या हो जाएगा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन आर की पावर 5। तो आप देख सकते हो उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा आपके पास इसके लिए पोटेंशियल में था, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं एक्स आर की वैल्यू है दिस वन, तो आर स्क्वायर क्या होगा, व्हाट इज आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉडुलस ऑफ दिस, मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगी। अगर इसको मैं टोटल डिफरेंशिएशन की तरह डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा, 2r dr, 2x dx, 2y dy, 2z dz। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, r dr की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, x dx प्लस y dy प्लस z dz होगी। ये वैल्यू आप इसकी रख सकते हैं, ओके। तो ये जो हमारे पास वैल्यू होगा डी ऑफ एफ आर, डी ऑफ एफ आर क्या हो जाएगा, आर डी आर अपॉन आर की पावर 5। नाउ कैन डायरेक्टली इंटीग्रेट दिस वन, एफ आर क्या हो जाएगा बताएं, एफ आर हो जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ डी आर अपॉन आर की पावर 4 प्लस सी। डी आर अपॉन आर की पावर 4 का इंटीग्रेशन बताएं, तो ये हो जाएगा -4, है ना। तो -4 प्लस 1 कितना, आर की पावर 4 है, आगे ऊपर जाएगा -4 हो जाएगा, प्लस 1 -3, है ना। हो जाएगा आर की पावर -3 अपॉन -3 प्लस सी, ये आ जाए। गिवन है आपको F1 0 दिया है, F1 इक्वल टू 0, तो लिख दीजिए इसमें F1 इक्वल टू 0 मतलब हो गया 0 माइनस 1/3 प्लस सी, यानी कि क्या हो गया, सी इक्वल टू 1/3 आ गया। तो इसलिए एफ आर क्या हो जाएगा मेरे पास, एफ ऑफ आर कैन बी टिन एच माइनस 1/3 आर क्यूब प्लस 1/3, ये हमारा एफ आर है, राइट। अब इसके लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं। लास्ट पार्ट क्या है मेरे पास, दिस वन, लास्ट पार्ट क्या है, फाइंड द एफ वाई स्क्वायर कोस एक्स प्लस जेड क्यूब आई प्लस 2y साइन एक्स माइनस 4j प्लस दिस इज कंजर्वेटिव। एक कंजर्वेटिव दिया है, कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, कर्ल एफ इक्वल टू 0 होता है और इसका वर्क डन फाइंड आउट करना है, राइट। सेम तरह क्वेश्चन है, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बना देता हूँ, पेपर इसका खत्म हो गया, कोई बात नहीं। जे कर्ल एफ 0 का मतलब होता है कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, ठीक है। और इस केस में क्या होगा हमारे पास, f इक्वल टू डेल फाई होगा, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डी फाई, और डी फाई की वैल्यू यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, डी फाई की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हो आप वाई स्क्वायर कोस एक्स प्लस जेड क्यूब इंटू डी एक्स, ओके। और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2y साइन एक्स माइनस 4 डी वाई, और यहाँ से आ जाएगा प्लस 3x जेड स्क्वायर प्लस 2 डी जेड, ओके। तो मैं थोड़ा सा स्पेस हमारे पास कम पड़ गया है, तो मैं इसी स्पेस में यहाँ पे सेट कर देता हूँ इसको। तो वर्क डन क्या होगा बताए, वर्क डन, वर्क डन हो जाएगा a टू b f डॉट डी आर, क्या जाएगा मेरे पास, f डॉट डी आर, और f डॉट डी आर हो गया नीचे, तो डी फाई इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन करके इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी मेरे पास दिस वन, वाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस एक्स जेड क्यूब माइनस 4y प्लस 2z, और ये कहाँ से कहाँ तक, a से b। तो पॉइंट a क्या है, पॉइंट है मेरे पास 0 1 -1, ओके, 0 1 -1, 0 1 -1, और ये पॉइंट है π/2 -1 2। इसका अंतर आप सोल्व कर लीजिएगा, इसका अंतर सोल्व करके आपके पास आ जाएगा 15 + 4 5,
ये हमारा पेपर पूरा सोल्व हो गया, राइट। तो रेस्ट जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो हमारे जो पार्ट हमने छोड़ दिए हैं पेपर के हिसाब से आपका पूरा सॉल्यूशन हो गया। ओके, so this is the solutions of this model paper. Would you if you like this, then kindly subscribe my channel and just push the bell button so that you can find the all the videos whichever I will upload in future, and also share with your friends. Okay, thank you very much. Thank you.